مجلس میں بھی موجود ہوتی ہے۔ جن صاحبان نے ابھی تک اپنے کرونا کے انجیکشن نہیں لگائے ہیں تو وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ وہاں ان کے کیمپ میں جائیں اور اپنی کرونا کی جو ویکسینیشن ہے اس کو مکمل کروائیں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت ضروری ہے، تو آپ سے استدعا ہوگا کہ آپ اس طور پہ عمل فرمائیں۔ اور آخری گزارش چندہ کے حوالہ سے ہے، ہمارے کارکنان جن کے پاس چندہ کی کاپیاں ہیں وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، تو آپ سے استدعا ہے کہ آپ عزاداری سید و شہداء کے لیے ہم سے دعوت فرمائیں۔ میرے پاس بھی کاپی ہے، جو صاحبان مجھے چندہ دینا چاہتے ہیں مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ اور آج مجلس کے اختتام کا تابوت شہزادہ محمد ابراہیم برآمد ہوں گے، تو اور میں درخواست کروں گا خطیب عالم اسلام فخر ملت جعفریہ جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد آزادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ شہیدیت اور محمد والے محمد بلند کا صلوات۔ طیبو طاہرو سیدو زہرو عابدو زاہدو رضیو مرضیو شہزادی کونین مادر حسین بطول عذرا مریم و سارا عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صلوات علی محمد وعلی ہجری کے اشرۂ
اجتماع اعضاء کی مرکزی امام بارگاہ نوری گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 5ویں مجلس میں شریک ہیں۔ عنوان گفتگو عظمت و اوصاف امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اور سلسلہ گفتگو اس وقت 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے جیسے کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات کو کبھی بھی اپنے کسی بھی نمائندے سے خالی نہیں چھوڑا۔ اس کائنات کو خصوصاً اس دنیا کو اپنے کسی بھی نمائندے سے خالی نہ چھوڑنا اس کی مجبوری نہیں بلکہ ہماری مجبوری ہے۔ یہ انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ جب سامنے کی بات ہے اور ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے، اور اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس معمولی سی بھی عقل نہیں ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، بچہ بھی یہ بات سمجھ لے گا کہ قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے، احادیث بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جس وقت شیطان نے سجدہ آدم سے انکار کیا، اس نے اللہ سے اپنی تمام مزدوریوں کا، وہ جو مزدوری والی عبادتیں اس نے کی تھیں، اس نے اللہ سے صلہ چاہا۔ تو اللہ نے کہا کیا صلہ چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تو کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہی نہیں، تو کہا کہ میں اس کی نسل کو بہکانا چاہتا ہوں، آدم کی نسل کو بہکانا چاہتا ہوں، اور قیامت تک اس کی نسل کو، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکانا چاہتا ہوں اور بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ وقت معلوم تک کی تجھ کو مہلت ہے۔ اس نے تو معلوم کہاں تک کی مہلت چاہیے؟ اللہ نے کہا وقت معلوم تک کی مہلت، جس کو جتنا چاہنا بہکانا، چاہے سامنے سے، چاہے پیچھے سے، چاہے آگے سے، چاہے پیچھے سے، کہیں سے بھی چاہنا بہکانا، لیکن تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی محقق ہو، ہر پڑھے لکھے سے پوچھنا ہے، اور اس کا جواب سب کے پاس ہے، کیا وقت معلوم آ چکا ہے؟ سب کا جواب ہے نہیں، اب تک وقت معلوم نہیں آیا۔ پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے پتا کہ وقت معلوم نہیں آیا؟ تو جواب آئے گا اس لیے کہ ابھی بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، ابھی بھی چوری کی جا رہی ہے، ابھی بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ابھی بھی کچھ پاک اور طاہر لوگوں کے خطابات پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ابھی بھی سچ پر جھوٹ کا لبادہ چڑھایا جا رہا ہے، ابھی بھی حق کو چھپایا جا رہا ہے، یعنی شیطان ابھی بھی بہکا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وقت معلوم ابھی نہیں آیا، گویا شیطان بہکا رہا ہے۔ اللہ سے اذن لے کے چلا ہے، اللہ نے کہا جتنا چاہتا ہے بہکا لے۔ تو اب یہ عدل الہی پر حرف آ جائے گا، یہ ہے وہ بات جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، حرف الہی، عدل الہی پر حرف آ جائے گا، عدل الہی پر اعتراض اٹھے گا کہ اگر اللہ یہ انتظام نہ کرے کہ آسمان سے شیطان کی صورت میں ایک بہکانے والا تو ہر دور میں موجود ہو، لیکن آسمان سے رحمان کی صورت میں ایک راہ بتانے والا موجود نہ ہو۔ تو تم نے کیا اللہ کو نعوذ باللہ ظالم سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ ظلم کرے گا نعوذ باللہ کہ وہ شیطان کو بہکانے کی اجازت تو دے دے لیکن اپنا کوئی نمائندہ شیطان کے مقابلے پہ نہ بھیجے؟ اگر شیطان کے علاوہ شیطان نہ ہوتا اور اللہ جو عام سے انسان ہیں ان کو اجازت دے دے گا کہ تم اپنے آپ کو اپنے درمیان ایک دوسرے کو بہکاتے رہو، تو پھر انسانوں ہی کو اجازت دیتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو راہ بھی بتاتے رہو۔ لیکن جب شیطان آسمان سے چلا ہے بہکانے کے لیے، جب رہے گمراہی آسمان سے چلی ہے بہکانے کے لیے، تو رہے ہدایت بھی آسمان سے ہی آنی چاہیے۔
پتلا بن رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام، وہ صرف ایک معمولی پتلا نہیں تھا، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی تھا۔ اس کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ نامنیٹ کیا اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ سلسلہ ہدایت یہاں سے شروع ہو رہا، اور ہماری یہ فطرت ہے، ہماری یہ عادت ہے، ہماری یہ سنت قرار پائی کہ ہم ہر دور میں آدم کی طرح کوئی نہ کوئی نمائندہ رکھیں گے۔ یہ ہے وہ فکر کہ جس فکر کی طرف ہر کلمہ گو کو نگاہ کرنی چاہیے، ہر کلمہ گو کو توجہ کرنی چاہیے کہ سیدھی سی بات یہی ہے کہ جب ہر دور میں شیطان ہے تو ہر دور میں رحمانی نمائندہ بھی ہونا چاہیے، اور رحمانی نمائندہ شیطان سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، بہکانے والے سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ اب شیطان میں نوالوں کیا کیا صفتیں ہوں گی جو بد صفتیں ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو سمجھ گیا تو میرا سلام ہے۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، ہر وقت بہکاتا ہے، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بہکاتا رہتا ہے، مسجد میں جانے سے روکتا ہے، اچھے کام کرنے سے روکتا ہے، کبھی کوئی اچھے کام کرنے جاتا ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی راہ ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بادھا ڈال دیتا ہے، بندش کھڑی کر دیتا ہے، یعنی مسلسل وہ ساتھ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کیسے ہو جائے گا کہ شیطان میں تو یہ صفت ہو کہ موجود ہو اور دکھائی نہ دے، تو جب ماننے پہ آئیں تو شیطان کی غیبت کو مان لیں، نہ ماننے پہ آئیں تو حجت کی غیبت کو نہ مانیں۔ یہ پورا کارخانہ قدرت اس کا چلانے والا اللہ ہے، یہی حسین کا پیغام ہے۔ لوگ مجلس ادا کو اب تک سمجھے نہیں، لوگ ذکر حسین کو اب تک سمجھے نہیں۔ ذکر حسین سبب ہے ذکر توحید کی۔ یہ جو باتیں توحید کی معرفت کی ہم مجلس میں بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے ہر امام نے ہمیں بتایا، یہ ہم اپنے اماموں سے سیکھ کر بتا رہے ہیں، ہم پر کوئی وحی نہیں اتر رہی ہے، ہم پر کوئی الہام نہیں ہو رہا، اور ہمیں ان اماموں نے بتایا ہے کہ ہمیں ان اماموں نے بتایا ہے جن اماموں کو اللہ نے بنایا ہے۔ جو فرمانے نا، تو اب جیسے آدم سے لے کے خاتم تک ہر بھیجا ہوا نمائندہ اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح جب تک شیطان بہکاتا رہے گا تب تک ماننا پڑے گا کہ رحمانی نمائندہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی جملہ آپ کے حوالے، اور اگر کسی نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اب پیغمبر کے بعد اللہ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے راہ ہدایت دینے کے لیے، اس کا مطلب ہے اسے مسلسل شیطان بہکا رہا ہے۔ یہ بھی شیطان کی بہکائی ہوئی فکر ہے کہ کوئی راہ بتانے والا نہیں ہے، یہ بھی شیطان اڈیل رہا ہے دماغ میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ذکر حسین ہے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے وہ تمام کا تمام ائمہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال جو میں نے موضوع قرار دیا تھا اس میں ایک جملہ دیا تھا، اور وہ جملہ میرے موضوع میں ہے اور بڑا کارگر ہے، اس لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ صحاح ستہ کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے مولانا وحید الزمان، بہت بڑے عالم ہیں کہ عالم اسلام کی 6 کتابوں کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، صحیح بخاری سے لے کے اور سنن ابن ماجہ اور مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم، ترمذی، مشکات، یہ ان کتابوں کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے مولانا وحید الزمان۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی ہدیۃ المہدی، ان کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، اور آپ کے اسی شہر سے چھپی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن 12 نقبا کا، جن 12 جانشینوں کا، جن 12 ائمہ کا پیغمبر نے اپنی حدیث میں تذکرہ کیا ہے، ان میں پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے،
खामोशी काज़िम और जो फरमा रहे हैं। तो अब ये तो बात तस्लीम शुदा है कि कहीं ना कहीं कोई बात मानी जा रही है, कहीं ना कहीं हमको तस्लीम किया जा रहा है। तो जितना भी जिक्र हुसैन है वो जिक्र तौहीद, वो जिक्र उलूहियत, वो जिक्र कुदरत खुदा। और हुसैन ने समझाया कि पूरी कायनात में अल्लाह का हुक्म चल रहा है, पूरी कायनात में अल्लाह का हुक्म चल रहा है। मैंने अर्ज़ किया था ना कि खवारिज ने एक नारा लगाया कि अल हुक्म लिल्लाह अल अम्रु लिल्लाह, हुक्म भी अल्लाह का है, अम्र भी अल्लाह का है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि हुक्म भी अल्लाह का है और अम्र भी अल्लाह का है। लेकिन ये तो बताओ खारिजियों, ये तो बताओ कि अम्र है तो अल्लाह का, उतर किस में रहा है? खारिजियों से पूछा जाए, ये तो खारिजियों का नारा, तो अब पूछा जाए कि अम्र अल्लाह का है तो अम्र का मालिक अल्लाह, उतर किस में रहा है? तवज्जो है ना भाई। सूरह हर रोज पढ़ी जाती है, न मालूम कितने लाखों दफा पढ़ी जाती होगी पूरे रूए अर्श पर। हर इंसान जो कलमा वो है न मालूम कितनी मरतबा सूरह कद्र की तिलावत करता होगा। तो सिर्फ तिलावत कर लेने से ही मसला हल नहीं होगा कि तिलावत करने पे आ रहा है तो शायद ईसाई भी पढ़ रहा होगा अपना मुतालिया बढ़ाने के लिए। जैसे हम तौरात और ज़बूर और इंजील के असफार का मुतालिया करते हैं, हम देखेंगे तौरात में क्या था, ज़बूर में और इंजील में क्या था। वैसे ही इस वक्त जो मुहक्किकीन हैं, नसारा हैं, और जो यहूदी मुहक्किकीन हैं, और जो हिंदू मुहक्किकीन हैं, वो भी कुरान की आयतें पढ़ते होंगे, वो भी सूरह कद्र पढ़ रहे होंगे। तो अगर पढ़ लेना ही काफी है तो वो बराबर होगा। सिर्फ पढ़ लेने ही से मसला हल नहीं होता। बात यह है कि उस कुरान की आयत का जस क्या है, उसमें अल्लाह बातिन में पैगाम क्या दे रहा है, वहां तक पहुंचो। इजाजत है ना बात आगे बढ़ाई जाए? कह तो दिया कि अल अम्रु लिल्लाह, अम्र अल्लाह का है, लेकिन इस अम्र को समझो, इस अम्र की मारिफत हासिल करो, इस अम्र में है क्या क्या क्या। बार बार अल्लाह ने कुरान में कई मौकों पर इरशाद फरमाया है कि वो युदब्बिरुल अम्र, वो अम्र की तदबीर करना। मुदब्बिरुल अम्र, युदब्बिरुल अम्र की तदबीर करने वाला अल्लाह, यानी अम्र का मालिक और खालिक अल्लाह। इस अम्र में है क्या क्या क्या। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह आराफ, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्सा वल क़मरा वन नुजूमा मुसख्खरातिन बिअम्रिहि तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सलामत रहे जिसने आयत पढ़ी, सुभान अल्लाह कहा है, यही हक है, हुसैन ने हमें सिखाया ही है। आयत सूरह आराफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्सा वल क़मरा वन नुजूमा मुसख्खरातिन बिअम्रिहि। अब यहाँ तक मैंने आयत को रोक दिया। अल्लाह कह रहा है, तवज्जो, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह वो है, तुम्हारा रब अल्लाह वो है। कौन है? अब अल्लाह यहाँ पर अपनी सिफत के द्वारा इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तुम्हारा रब अल्लाह वो है कि जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में खल्क़ किया। अब गिनते जाइएगा, 6 दिनों में जमीन और आसमान को खल्क़ किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसके बाद उसने अर्श की तदबीर की, अर्श को इस्तवा किया, अर्श को कायम किया। खिलकत ज़मीन और आसमान 6 दिनों में, फिर उसके बाद अर्श को कायम करना। युग़शिल लैला अन्नहार, वही है जो रात को दिन से बदल देता है। इधर हमारा अल्लाह है भाई, हम नहीं बोलेंगे अपने अल्लाह पर तो और कौन बोलेंगे? हम तो उस अल्लाह को मानते हैं जिस अल्लाह को मोहम्मद और अली ने बताया है। तो हम तो अपने अल्लाह की हर शान पर सुभान अल्लाह कहते हैं, इतनी मोहब्बत है हमें अपने अल्लाह से। कहा कि जमीन और आसमान 6 दिनों में खल्क़ किए, उसके बाद अर्श को कायम किया। वही है कि जो रात को दिन से बदल देता है, दिन को रात का पर्दा उठा देता है।
यत्लुबहु हसीसा, कि वो दिन के पीछे पीछे आती दिन के पीछे पीछे आती है। वश्शम्स वल-क़मर वन-नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह, सूरज, चांद, सितारे, ये सब के सब उसके अम्र के तहत काम करते हैं। ये है आपकी ज़ियारत। मैंने अभी से तर्जुमा किया और आप पहुंच गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब दोबारा से ये जमीन और आसमान की 6 दिन में खिलकत, अर्श को कायम करना, दिन का रात में बदलना और रात का दिन में बदलना, सूरज चांद सितारों को अपने कंट्रोल में रखना, ये सब का सब अल्लाह के अम्र के जरिए होता। यानी अल्लाह के अम्र ने 6 दिन में जमीन और आसमान बनाए, अल्लाह के अम्र ने अर्श को कायम किया, अल्लाह ने अपने अम्र के जरिए रोजाना रात को दिन में बदलता है, दिन को रात में बदलता है। अल्लाह के अम्र के तहत, अल्लाह के अम्र के तहत तस्वीर है सूरज में, चांद भी, सितारे भी। यानी अम्र इतना पावरफुल है अल्लाह का कि उसके जरिए से आसमान और जमीन भी बनाए जा सकते हैं, उसके जरिए से अर्श को कायम भी किया जा सकता है, उसके जरिए से दिन और रात आपस में एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, उसके जरिए से चांद पर भी कंट्रोल है, उसके जरिए से सूरज पर भी कंट्रोल है, उसके जरिए से सितारों पर भी कंट्रोल है। और अल्लाह कह रहा है ये सब कुछ हमारे अम्र के तहत है, सब कुछ हमारे अम्र के तहत है। अब गिनवाने की जरूरत नहीं है कि अम्र क्या क्या करता है। आयत के ज़ैल में जो कुछ मैंने बताया, जमीन आसमान की खिलकत से देखे और दिन और रात का तब्दील होना, ये सब का सब अम्र खुदा है। और इसी कुरान ने सूरह कद्र में कहा कि एक शब ऐसी आती है कि हम अम्र को नाजिल करते हैं। सलामत रहे तमाम हज़रात पीछे बैठे हैं, खुदा सबको सलामत रखे। आयत ने बताया सूरह आराफ 54 आयत जो मैंने आपके हवाले की, और फिर अल्लाह उसी अम्र के लिए इरशाद फरमाता है वनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। हाँ, उस दिन मलाइका और रूह उतरते उसके कुल के कुल अम्र के साथ। यहां तक आप आ गए, उसके कुल के कुल अम्र के साथ। मैंने अभी अर्ज़ किया कि रोजाना सूरह कद्र पढ़ी जाती है, और सूरह कद्र में शब-ए कद्र का ऐलान है कि एक रात ऐसी आती है पूरे साल में कि जब अल्लाह कुल का कुल अम्र मिन कुल अम्र, पूरा का पूरा अम्र, यानी उस रात अल्लाह जितना भी अम्र उसके पास है वो सब का सब नाजिल करता है। और इस अम्र के तहत क्या होता है, इस अम्र के तहत इसकी पावर क्या है, इसकी पावर यह है कि जमीन और आसमान बनाए जा सकते हैं, इसकी पावर यह है कि दिन और रात को तब्दील किया जा सकता है, इसकी पावर यह है कि अर्श कायम किया जा सकता है, इसकी पावर यह है कि सूरज चांद सितारों पर कब्जा किया जा सकता है। तो अम्र का इख्तियार हर शब-ए कद्र को उतरता है। तो इस साल भी जो पिछले साल शब-ए कद्र गुजरी रमजान में, उसमें तो सभी घर में थे ना, उल्टी सीधी बीमारी फैली हुई है, सब घर में ही थे ना, तो सारे के सारे मुसलमान घर में ही थे ना। इस साल शब-ए कद्र तो हर साल की तरह इस साल भी तो अम्र उतरा है ना, तो आप तो सबके सब घर में थे। पहले तो बहाना था कि हम कहीं बाहर थे, हम कहीं घूम रहे थे, आप तो सबके सब घर में थे, चाहे अपने घर में हो चाहे अल्लाह के घर में हो, ये तो सब घर में। तो अब आम मुसलमानों से नहीं पूछता, वो तो बेचारे बड़े भोले भाले हैं। बात यह है कि पढ़े लिखे मुसलमानों से पूछता हूँ, आप भी तो घर में थे, इस साल भी शब-ए कद्र आई है, वो कहेंगे आई है। मैं कहूँगा इस साल भी शब-ए कद्र में अम्र उतरा है, वो कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि शब-ए कद्र आए और अम्र ना उतरे, इसलिए कि आयत कुरानी कभी झूठ नहीं बोलती। इस साल भी अम्र उतरा है। तो अब सीधा सा 14 साल से सवाल है, ये बता दो किस पर उतरा है। थे कि आप पर उतरा है, अगर आप पर उतरा ये बताइए कि इस साल आपकी शादी रहेगी या खत्म हो जाएगी। इसी बात है, जब अम्र उतर रहा है तो कोई ना कोई मंजिले अम्र भी होनी चाहिए, कोई ना कोई मस्कने अम्र भी होना चाहिए, कोई ना कोई मुस्तक़र्रे अम्र भी होना चाहिए। तो अब तलाश ये करो कि अम्र उतर किस पे रहा है। जिस पर अम्र उतर रहा है कुल का कुल, उसके पास जमीन का इख्तियार भी होगा, आसमान का इख्तियार भी होगा, अर्श का इख्तियार भी होगा। वही ये कैफियत भी रखता है कि
दिन को रात से, रात को दिन से बदल दे, वही सूरज पर भी इख्तियार रखा होगा, वही चांद पर भी इख्तियार रखा होगा, वही सितारों पर भी इख्तियार रखा होगा। उसके ही हाथों पर कुल का कुल अम्र मुसख्खर है। अब तलाश करना है कि किस पर अम्र उतरा है, किस पर अम्र उतरा है, किस पर अम्र उतरा है। एक चाहने वाला, मेरे साथ में इमाम का चाहने वाला घर पे अभी अभी सोया था, अभी अभी सोया था, अभी अभी सोया था। कुछ देर हुई थी उसे सोए हुए कि एक बार वो कहता है कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे झिझोड़ कर जगाया है। मेरे घर का दरवाजा बंद था, कुंडी लगी हुई थी और मैं थोड़ी देर हुई थी कि मैं सोया था, तहज्जुद पढ़ के सोया था ताकि फज्र तक थोड़ा सा आराम कर लूं। ऐसे में लगा किसी ने झिझोड़ कर जगाया है। मेरी आंख खुली तो मेरे सामने कोई खड़े होकर कह रहा था, तुम सो रहे हो क्या? हमारे शिया सोते हैं? क्या हमारे शिया सो जाते हैं? एकदम चौंक के खड़े होकर देखता है कि सामने मेरा सातवां उलिल अम्र मुर्शिद काज़िम खड़े हुए। मैं एक बार खड़े होकर अदब से झुका, इमाम की दस्तगोशी की, इमाम को सलाम किया, जवाब सलाम मिला और इमाम ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। शियों को इस तरह दिखाते हैं, तो इसलिए मजलिसें बर्पा होती है कि हम मुहिब से आगे बढ़ के शिया बन जाते हैं। अभी तो हम शिया हैं ही नहीं, अभी तो हम मुहिब हैं अली के। मुहिब हैं तो लोग डर रहे हैं, जब शिया हो जाएंगे ना मालूम क्या होगा। अभी तो हम मुहिब हैं अली हैं। दिल को सुकून है कि अलमदार साथ है, सदियों से एक पल को ये पंजा न झुक सका। अब्बास तेरे हाथ पे ज़हरा का हाथ है, वजुला यदुल्ला मौला कायनात जनाबे अमीरुल मोमिनीन शारा खुदा सुपर पावर नारा। जो फरमाया है, जो कहा कि उठो हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं उठा, इमाम के पीछे पीछे चला, हैरान रह गया कि दरवाजा खुला हुआ था। तो मैं उस शिया से यही कहूंगा कि आपकी हैरानी मुझे समझ में नहीं आ रही। यहाँ तो आपके घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अली जब 13 रजब को आए तो अल्लाह के घर की दीवार दरवाजा बन गई। हुआ था, मैं बाहर निकला, बाहर सवारियां तैयार थी। एक नाक़िब मैं बैठा, एक नाक़िब मेरे साथ में इमाम मुर्शिद काज़िम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। और ऐसे में अभी नाक़िब ने एक कदम बढ़ाया था कि हम एक मकाम पर पहुंचे। अब जो मैंने गौर से देखा, मैंने देखा हम करबला में हुसैन इब्न अली की ज़री पर मौजूद थे। करबला में हुसैन इब्न अली की ज़री पर मौजूद थे। आप मेरे मौला वहां उतरे, मैं भी उतरा। 24 रकअत नमाज पढ़ी, 24 रकअत नमाज ज़रिए हुसैन पर पढ़ी और फिर वहां से बाहर आए, नाक़िब में बैठे। अभी एक कदम बढ़ाया था कि अब जिस मकाम पर पहुंचे, मैंने गौर से देखा मस्जिद कूफा, मस्जिद कूफा। और एक बार जैसे ही मस्जिद कूफा में उतरे, 17 रकअत नमाज मस्जिद कूफा में पढ़ी। वहां से बाहर निकले, सवारी पे बैठे, एक कदम सवारी ने आगे बढ़ाया, हम पहुंचे और उस मकाम को ना पहचाना। मैंने कहा मौला ये कौन सा मकाम है? कहा यहाँ इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा हुए थे। 24 रकअत नमाज मेरे मौला ने वहां अदा की और मैंने अपने मौला के साथ 24 रकअत नमाज अदा की। क्या खुशकिस्मत इंसान था, रूहे नमाज के पीछे नमाज पढ़ रहा था। वहां से आगे बढ़े, इब्राहिम खलीलुल्लाह के मकाम से आगे बढ़े, सवारी में बैठे। अभी एक कदम आगे बढ़ा था कि सवारी ने किसी मकाम पर पहुंचाया। जैसे ही गौर से देखा तो वो रोज़े रसूल मदीनतुल नबी था। वहां 24 रकअत नमाज पढ़ी और अब मैं अपने मौला के पीछे चला। फिर सवारी पर बैठे, 2 कदम आगे बढ़ाए थे कि किसी मकाम पर हम रुके, किसी मकाम पर हम रुके। आयत याद है ना पूरी? किसी मकाम पर हम रुके, मौला ने मेरा नाम लेकर कहा, सुनो अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। सुनो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं अदबन मुस्तैद हो गया, तैयार हो गया कि मेरे वक्त का उलिल अम्र क्या दिखाता। एक बार मेरे मौला ने कहा
मुस्तक़बिल, ऐ रात छुप जा, ऐ दिन ज़ाहिर हो जा। लिखे रहे तो समझ गया मेरा सलाम है। कैसे सुनाया आपने? सलाम। यही है नसरत मासूम का, यही है, और यही मज़े मासूम सुनने कहा था जैसे आपने सुना। मेरे मौला ने कहा ऐ रात छुप जा, ऐ दिन तुलू हो जा। कब मैंने देखा अचानक रात खत्म हुई और रोशन दिन शुरू हो गया, मेरा रुआ कपा रहा था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। एक बार मेरे मौला ने मुझे देखा, फौरन कहा ऐ दिन वापस चला जा, रात दोबारा शुरू हो जा। मेरे मौला दिन को रात में, रात को दिन में बदल रहे थे और अल्लाह कह रहा था यही तो उलिल अम्र का कमाल है। क्या यही तो अम्र है? और इसी अम्र के तहत जब उलिल अम्र के पास ये अम्र आता है तो हम उसे इख्तियार देते हैं, चाहे जो करे, इसलिए कि अम्र पहुंचा है। और जिसके पास इख्तियार आ जाता है, ये बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आती बाज़ औक़ात कि भाई शहर का एक डिप्टी कमिश्नर भी होता है, एक कमिश्नर भी होता है। डिप्टी कमिश्नर के अपने इख्तियारात, कमिश्नर के अपने इख्तियारात। डिप्टी कमिश्नर अपने दायरे इख्तियार में जो चाहे करे, उसे कमिश्नर से पूछने की जरूरत नहीं है। जब वो अपने दायरे इख्तियार से तजावुज करने पे आए या उससे ज्यादा बढ़ के किसी काम को उसे अंजाम देना हो जो आईन में उसके इख्तियार में नहीं लिखा, आपको कमिश्नर से पूछेगा कि ये करूं या नहीं। तो समझ में सलाम है भाई, आपको पूछेगा कमिश्नर से ये काम करूं या नहीं। तो डिप्टी के पास जितना इख्तियार होता है उसे बार बार अपने आला अफसर से पूछने की जरूरत नहीं होती। और अगर पूछ लिया तो आला अफसर ये कहेगा कि भाई आपके पास इख्तियार है, लिखा हुआ, पूछने की जरूरत क्या, कर दीजिए। आप तो वही करेंगे जो इख्तियार कहता है, आपको वही करना है जो आपका इख्तियार कह रहा है। तो जितना इख्तियार आला अथॉरिटी की तरफ से एक मातहत को दिया जाता है, उस मातहत को बार बार आला अथॉरिटी से पूछने की जरूरत नहीं होती, अपने दायरे इख्तियार में हर काम करता है। आला अथॉरिटी जिसे अल्लाह कहते हैं, उसने कुल का कुल इख्तियार अम्र में रख दिया। अब जिसके पास अम्र चला जाए उसे अम्र के तहत हर इख्तियार हासिल करने और इस्तेमाल करने की कुल्ली इजाजत है। उसे बार बार पलट के अल्लाह से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। इसलिए जब भी कोई आगे कहता है हमारे यहाँ कहत है, बारिश नहीं हो रही, वो कहते हैं बारिश हो जाती है, अल्लाह से कहने की जरूरत ही नहीं है। कोई आगे आके मेरा बेटा मर गया है, वो कहते जिंदा हो जा, अल्लाह से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि अम्र में जिंदा करने का इख्तियार भी है, अम्र में बारिश बरसाने का इख्तियार भी है, पहुंचे ही नहीं। और ऐसे ही किसी उलिल अम्र के पास कोई आके ये कहे मेरे पास बेटा ही नहीं है, तो वो पूछ के थोड़ी सांस देगा। उसके पास इख्तियार है, अम्र में ये इख्तियार मिलता है तो उलिल अम्र के पास हर इख्तियार आता है। अल्लाह कह रहा है कि आसमान और जमीन की खिलकत, जमीन और आसमान की 6 दिनों में खिलकत, रात का दिन में बदलना, दिन का रात में बदलना, और उसके बाद सूरज चांद सितारे का मुसफ्फर होना, ये सब का सब अम्र के तहत है, ये सब का सब अम्र के तहत होता है। तो जिसका इख्तियार सूरज पर, चांद पर होगा, सितारे पर, और कुरान कह रहा है कि अम्र के पास इख्तियार होता है। तो हम जो आले मोहम्मद की फजीलतें पढ़ते हैं, असल में वो फजाइल खुदा, असल में वो फजाइल कुरान है। कि जब कुरान कह रहा है कि वश्शम्सा वल क़मरा वन नुजूमा मुसख्खरातिन बिअम्रिह, उसके अम्र के तहत ये चांद सूरज सितारे काम करते हैं, तो ये बताना जरूरी है कि कैसे काम करते हैं। तो कोई पूछता है कैसे काम करते हैं चांद सूरज सितारे, तो हम कहते हैं ऐसे काम करते हैं कि जिस सूरज को अल्लाह मशरिक़ से तुलू करके मग़रिब में डुबोता है, साहिब अम्र उसे मग़रिब से वापस लौटा देता है। जिस चांद को अल्लाह रात में तुलू करता है, साहिब अम्र उसे 2 टुकड़े कर देता है। जिस सितारे का खालिक अल्लाह है, साहिब अम्र उसे छोटा सा करके दरवाजे पे बुला लेता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब उस साहिब अम्र की मारिफत जरूरी है कि जिसको अल्लाह ने अम्र अता किया। अपने दौर का साहिब अम्र मुस्तफा, बोलिए हाँ या नहीं? अपने दौर का साहिब अम्र मुस्तफा,
تو کل کا کل امر خدا مصطفیٰ پر نازل ہوا. تو اب مصطفیٰ جو چاہے کریں. ہم کچھ یقینوں سے بات نہیں کریں, کم یقینوں سے بات نہیں کریں, ہم کٹ حجتوں سے بات نہیں کریں, ہم عقل کل رکھنے والوں سے بات کرتے ہیں اور عقل مجسم کی معرفت رکھنے والوں سے مخاطب ہوتے ہیں. یہ باتیں علم کی ہیں اور یہ باتیں جہالا نہیں سمجھتے. چپ ہو گیا. میں نے کہا یہ باتیں علم کی ہیں, جہالا نہیں سمجھتے. تو میں جملہ پلٹ دیتا ہوں, یہ باتیں علم کی ہیں, جو نہ سمجھے وہ جاہل ہے, جو نہ سمجھے وہ جاہل ہے. اب اپنے دور کا اولی الامر ہے ذات مصطفیٰ, اور یہاں جانے ذات مصطفیٰ اور پیغمبر. اگر کم از کم 23 برس کی پیغمبر کی حیات کو دیکھا جائے, حالانکہ پیغمبر کو جس شخص پیدا ہوئے تھے, زمین پر آئے تھے, اس وقت بھی وہی اولی الامر تھے. اور جب پیغمبر نے رسالت کا اعلان کیا ہے تو 23 برس کی نبوت کی زندگی, تو کم از کم 23 سال ہر شب قدر پیغمبر پر امر اترا. 23 سال ہر شب قدر پیغمبر پر امر اترا. ٹھیک ہے, تو پیغمبر جملہ ضائع نہ ہو, پیغمبر بہت فکری جملہ ہے, پیغمبر پر امر نازل ہو رہا. میں نے اس لیے مصطفیٰ کا نام استعمال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی امام کا ذکر کروں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن مصطفیٰ پر تو کسی کو اعتراض نہیں. تو جب میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے کہ جس شخص پیغمبر جس شخص جس سال کی جس شخص پیغمبر پر امر خدا اترا تو کل کا کل اترا, اس سے کسی کو انکار نہیں. اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, سورہ قدر کی آیت کہہ رہی ہے من کل امر, ہر امر لے کر اترتے ہیں, ہر امر پیغمبر کی ذات پر اترا. تو پیغمبر نے ہر امر کو ویسے ہی استعمال کیا کہ جیسے اللہ استعمال کرتا. یہی بات تھی, اس لیے زحمت تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان گیا, وہ پھر دوبارہ کرنا ہوگا. وہ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. یعنی جیسے ہم امر کا استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے تم پر امر اتارا ہے, تو تم بھی ویسے استعمال کرو. یعنی مصطفیٰ نے امر کے استعمال میں نہ کمی کی نہ زیادتی, اور جو ہے استعمال امر میں نہ کمی کی نہ زیادتی, جیسے اللہ چاہتا تھا ویسے ہی امر استعمال کیا. تو اب دیکھ لیا ادھر, آپ ادھر آ جائیے, ادھر میری طرف دیکھیے, توجہ ہے. تو اب واجب ہے, میں نے کہا میری تقریر کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے, کوئی لفظ بھرتی کا نہیں ہوتا. آپ پر اعتماد ہے مجھے کہ آپ میرے کسی لفظ کو ضائع نہیں کرتے. باقی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا بور کر رہے ہیں, کوئی قصہ سنائیں, کوئی لطیفہ سنائیں, کیونکہ آج کل زیادہ تر ہو رہا ہے, اس سے 2-4 لطیفے سنائیں, لیجیے مجلس تمام وہ چلے گئے. بات یہ کہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے, عقیدے کو مضبوط کیسے کیا جا رہا ہے, وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. اس لیے میری طرف دیکھیں. تو اب تحمل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے, اور پھر اس کے بعد یہ تمہید میرے اگلے جملوں میں کام آنے والی ہے. اس لیے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ اللہ کے رسول نے ہر امر ویسے استعمال کیا جیسے اللہ استعمال کرتا. یعنی مرضی مصطفیٰ مرضی خدا, اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کیا. تو اب بات مصطفیٰ جو اولی الامر ہو اس پر واجب ہے کہ امر خدا ویسے ہی استعمال کرے جیسے اللہ استعمال کرتا. تو اب اگر کسی کو کسی نے بعد خدا اولی الامر تسلیم کیا ہے, کسی کو کسی نے بعد رسول خدا اولی الامر مانا ہے, تو اب وہ اس کو دیکھے کہ کیا وہ ویسا ہی کام کرتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ تک بغیر بتائے پہنچ جاتی ہیں, میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ بات پہنچ گئی. کیا بعد رسول کسی نے اگر کسی کو اولی الامر مانا ہے, بعد رسول تو یہاں تک کا عرصہ آ رہا ہے نا, کوئی ادھر ادھر نہ چلا جائے, تو کسی نے کسی کو اولی الامر مانا ہے, تو کیا اس اولی الامر میں یہ دیکھے کہ ہر امر خدا اسی علم خدا کے تحت استعمال کیا جو علم خدا اللہ اپنے اولی الامر کو دیتا ہے. تو اگر آپ تک یہ بات نہ پہنچی اور آپ فیصلہ نہ کر پائے کہ وہی علم بعد رسول خدا اولی
الامر کے پاس تھا جو اللہ کا علم تھا تو علم میں کامل ہونا چاہیے، اور جو اولی الامر علم میں کامل ہوتا وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ پر بھی کبھی شیطان، میں بھی کبھی راستے سے بھٹک جاتا، راستے سے ہٹا ہوا دیکھو تو مجھے راستے پہ لگا دے۔ پہچان یہ ہے اصل اولی الامر کی کہ وہی اصل اولی الامر ہے کہ وہ علم خدا کے تحت ویسا ہی کام کرتا جیسے اللہ کرتا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی وہ منبر پر آئے تو کہے جو چاہو مجھ سے پوچھنا، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ علم میں کامل ہونا چاہیے، علم میں کامل ہونا چاہیے۔ تو رسول اپنے دور میں اولی الامر اور کامل اولی الامر، تو اب وہ اولی الامر ہو پاتے رسول جو رسول جیسا توجہ ہے، تیار ہے سننے کے لیے؟ پوری تمہید سن لی؟ اب اولی الامر وہ ہو جو بالکل رسول جیسا۔ میں آج کے اتنی بڑی داڑھی والے ملا کی بات نہیں کر رہا، وہ خامخواہ ہی کہتا ہے ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جس اولی الامر کو رسول جیسا بنایا، میں اس اولی الامر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاتر میں کہا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ جیسے مصطفیٰوں کو بنایا۔ یہ ہے فیصلہ، یہ ہے فیصلہ، جیسے آپ نے سنا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ جیسے مصطفیٰوں کو بنایا۔ اب جو بعد مصطفیٰ اولی الامر ہو اس میں ضروری ہے کہ وہ بعین ہی مصطفیٰ، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ علی ابن یقطین ساتویں امام کے دور کا ایک چاہنے والا، بہت عظیم چاہنے والا، اس نے مولا سے دریافت کروایا کہ حکومت وقت نے مجھے وزارت کی دعوت دی ہے، کیا میں وزیر بن جاؤں؟ کیا میں وزیر بن جاؤں؟ تو آج کی بھی منسٹرز بن جاتے ہیں جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز بن جاتے ہیں، ان کی بھی پیغام ہے، کھڑے تو ہو جاتے ہیں انتخاب میں، اللہ سے بھی اجازت نہیں ہے۔ تم کہو گے نہیں جمہور کا جو فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بھی عجیب فکر بھی ہے کہ جو جمہور کا فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ، جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جیسا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ گئی بھینس پانی، اب اس کا انتظار کرتے رہیے کب باہر نکلے گی، اس لیے یہ مسئلہ مشہور ہے گئی بھینس پانی میں، کہ جب بھینس پانی میں جاتی ہے تو پانی میں رہ جاتی ہے، اب وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے کب نکلے گی، اپنی مرضی سے باہر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو کہہ دیا کہ جمہور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم تو انتخابات پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا آپ انتخابات پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ نے ملائے اعلیٰ میں معصوم ملائکہ سے انتخاب کیوں نہیں کروایا کہ مجھے زمین پر خلیفہ بنانا ہے، تم اپنے درمیان میں سے کسی کو چن کر مجھے بتا دو۔ یہ جمہوریت اگر ہونی تھی تو اسی منزل پر ہو جاتی، اللہ کہتا آدم میرا نمائندہ ہے، اے فرشتوں تم اپنا نمائندہ لاؤ۔ فرشتے اگر اپنا نمائندہ لے آتے اور وہ دور جمہوریت کا دور ہوتا، سمجھ گئے تو آپ کو سلام ہوگا، وہ دور پہلا دور ہے جب آدم کا پتلا بنا ہے، اس دور میں وہ دور اگر جمہوری انتخابات کا دور ہوتا، الیکٹورل ڈیموکریسی کا دور ہوتا جو آج ہے، اور اللہ کہتا فرشتوں تم اپنا نمائندہ لاؤ، میرا نمائندہ آدم، اور انتخاب ہوتا، تو آپ بتائیے کون جیتتا اور کون؟ اکثریت میں تو فرشتے تھے، اکثریت میں تو فرشتے تھے، تو فرشتوں کا نمائندہ جیت جاتا، اللہ اقلیت وہ اپنا اصل نمائندہ لے کے بیٹھا رہتا۔ نعوذ باللہ، میں تو باتیں سمجھا رہا ہوں۔ تو کبھی بھی جمہور کا فیصلہ حق نہیں ہوتا، کبھی بھی جمہور کا فیصلہ حق نہیں ہوتا، اس لیے کہ جمہور میں گھوڑے گدھوں کو ساتھ باندھا جاتا ہے۔ کبھی جمہور کا فیصلہ حق نہیں ہوتا۔ تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ منسٹر تو بن جاتے ہیں، اللہ سے بھی ہم
کبھی کسی نے پوچھا ہے اللہ سے کہ میں پروردگار کھڑے ہونے جا رہا ہوں کہ اجازت ہے تو تم اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس آ جاؤ، یہ تسبیح ہے ہمارے پاس، ہم استخارہ کر کے بتا دیں گے۔ تو میرے عزیزو، علی ابن یقین وزارت کی آفر ہوئی، مولا سے پوچھا، اولی الامر سے پوچھا، اس لیے کہ اسے یقین ہے جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا استخارہ کہتے کسے ہیں؟ اس لیے مجلس میں آ جاتے ہیں کہ علم کے نیچے آگے مرضی عباس پوچھ لیتے ہیں، زری پکڑ کے مرضی حسین پوچھ لیتے ہیں، اور جو ہے تو اب انہوں نے کہا مولا کیا میں وزارت قبول کر لوں؟ تو اب میرے ساتھ میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک بات کی ضمانت تم مجھے دو اور 3 باتوں کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے بعد وزارت قبول کر لیں۔ مولا ارشاد فرمائیے، کہا کہ جو 3 باتیں جس کی ضمانت میں تجھے دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے کبھی آگ جلائے گی نہیں، اور تو کبھی بھوکا اور بے لباس نہیں سوئے، کبھی بھوکا اور بے لباس نہیں سوئے، اور تیسری ضمانت یہ ہے کہ کوئی بھی تیری کبھی بے عزتی نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہاری تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ 3 ضمانتیں میں دے رہا ہوں، قبول کر لینا۔ کہا مولا وہ کون سی ضمانت ہے جو آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ کہا تم سے صرف ایک ضمانت مانگ رہا ہوں کہ جب بھی تمہارے دروازے پر میرا کوئی چاہنے والا کوئی مسئلہ لے کر آئے تو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یہ ہے مرضی۔ اگر آج کوئی منسٹر بن رہا ہے یا کوئی ممبر بن رہا ہے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کا، اس پر یہ عہدہ اس وقت حلال ہوگا جب عوام کے مسائل حل ہو رہے ہوں۔ سلامت رہے، جملہ تو آپ کا پہنچ گیا۔ اگر کوئی ممبر نیشنل اسمبلی، ممبر پروونشل اسمبلی، چاہے کاؤنسلر ہی کیوں نہ بن رہا ہو جمہور کے فیصلے سے، اور وزیر بن رہا ہو، اس وقت یہ عہدہ اس پر حلال ہوگا جب وہ عوام کے مسائل حل کرے۔ امام نے پیغام دیا، اور اگر کوئی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور کوئی عوام کا ایسا مشکل میں آنے والا جو اس کے دروازے پر آ جائے اور یہ منسٹر اس کو دروازے سے باہر نکال دے، اس کا مطلب ہے یہ عہدہ اسی وقت اس پر حرام ہو جائے گا۔ کہا کہ مجھے یہ گارنٹی دو کہ جب بھی کوئی چاہنے والا تمہارے دروازے پر آئے تو تم اس کا مسئلہ حل کر دو۔ مولا مسئلہ ایسا آپ کہہ رہے ہیں، جاؤ وزارت قبول کرو۔ وزارت قبول ہو گئی، توریہ ہے اور تقیہ، دو ہی لفظوں میں پورا پیغام کہہ دیا، توریہ بھی ہے اور تقیہ بھی ہے۔ تقیہ میں علی ابن یقین ہے، اور اس کے بعد یہ آل محمد کے چاہنے والے کا خاصہ کہ اگر کسی باطل حکومت کا بھی حصہ ہے تو اس باطل حکومت کے لیے بھی اس نے امام، کیونکہ اس نے امام تھا، اس باطل حکومت کے لیے بھی دیانت کام کرتا ہے اس وقت جب تک باطل حکومت دین حق کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے، اس وقت جب تک عوام کے مسائل کا حل کرنا ہے اس وقت تک وہ ہر کام بدیانت انجام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے سب؟ معاملات ہو رہا، اور پھر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو علی ابن یقین کو امام کی طرف نظر، نیاز، زکوٰۃ اور خمس بھیجا کرتا تھا، اور جن کے کچھ سوالات ہوتے تھے وہ بھی علی ابن یقین کو دیکھ کر لکھ کر دیتے تھے کہ ہمارے امام تک پہنچائیے اور ہمیں ان سے جواب چاہیے اپنے مسائل۔ علی ابن یقین نے ایک بار کسی نے آ کے نظر، زکوٰۃ، درہم و دینار، خمس دیا کہ یہ مولا کا، کچھ لوگوں نے آگے کاغذ پہ سوالات لکھے اور کہا کہ اس کا جواب مولا سے ہمیں چاہیے۔ پورے ایک زمبیل میں ساری چیزیں جمع کی، علی ابن یقین نے کہا یہ مولا تک پہنچ جائے۔ ایسے میں 2 لوگوں کو علی ابن یقین نے منتخب کیا جن کے متعلق علی ابن یقین کو یقین تھا کہ ان کے دل میں بھی وہی ہے جو زبان پر ہے اور زبان میں بھی وہی ہے جو دل میں ہے، یعنی منافق نہیں ہے، راز کو راز رکھنے کی صلاحیت ہے۔ 2 لوگوں کو منتخب کیا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے سواری پہلے سے تیار رکھی ہے، یہ تمام سامان میرے مولا تک مدینے میں پہنچاؤ، اور ان سوالات کے جوابات وہاں سے لے کے آنا۔ یہاں سے یہ 2 افراد چلے، راستے میں کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، پہنچے مدینے سے کچھ دور پہنچے تھے کہ ان کا سامان سفر جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بالکل مختصر ہے، تھوڑا سا
आधी रोटी और उसके बाद थक भी गए, पानी भी पीना था। थोड़ी दूर मदीने यहाँ आराम कर लेते हैं, आसपास देखते हैं, कुछ अपना ज़्यादा राह तय कर लेते हैं कि कुछ खाने पीने का सामान आ जाए और थोड़ी ताकत और कुव्वत आ जाए, पानी पी लें तो आगे बढ़ेंगे। परेशान हो रहे थे कि सफर कैसे जारी रखेंगे, वापस कैसे जाएंगे, इसलिए खाने पीने का सामान तो खत्म हो चुका। अभी ये सोच रहे थे कि दिल में सोचा कि जैसे ही कुछ इंतजाम होता है तो यहाँ से चलेंगे, मदीने पहुंचेंगे, इमाम की ज़ियारत करेंगे, इमाम के हवाले उनके तमाम अमानतें करेंगे और मदीने में रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे और घर वापस चले जाएंगे। लेकिन इंतजार कर रहे थे कि कोई आए तो थोड़ा सा ज़्यादा राह आ जाए। अभी ये सोच रहे थे कि लिखा यह है कि दूर से गर्द उड़ती हुई दिखाई दी, एक घोड़ा सवार आ रहा था। जैसे गर्द छटी ये दोनों एक बार एहतराम में खड़े हो गए, इसलिए कि कोई और नहीं, साथ में इमाम मुर्शिद आज़म आ रहे थे, साथ में इमाम तशरीफ ला रहे थे। और जैसे करीब आए ये दोनों आगे बढ़े, उन्होंने रकाबों को थामा, लजाम को थामा, इमाम जमीन पर तशरीफ लाए, उन्होंने इमाम को सलाम किया, जवाब सलाम मिला। क्या मौला आप ही की तरफ आ रहे थे, ये अमानतें आपकी। इमाम ने एक एक अमानत दी, उस अमानत को देखे बगैर कहा ये फलाने का इसमें नजर है, फला बिन फला ने इतनी ज़कात दी है, फला बिन फला ने इतना खुम्स दिया है। फिर एक और तफसील उन्होंने दी कि मौला ये कुछ लोगों ने आपसे सवालात पूछवाए, इन सवालात के जवाब भी दे दीजिए। और मौला हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, वो कुछ इंतजाम हो जाए तो हमारा इरादा ये है कि हम मदीने जाएं और रोज़े रसूल की ज़ियारत कर लें। इमाम ने कहा कितना खाना बचा है? कहा बस ये आधी रोटी। इमाम ने कहा दो। इमाम ने आधी रोटी अपने हाथ में ली और जैसे मैं इस तस्वीर को उलट उलट कर रहा हूँ वैसे इमाम ने उस आधी रोटी को ऐसे ऐसे अपने हाथों से मस किया और देकर कहा ये कूफे तक के लिए तुम्हारे लिए काफी है। सलामत रहे आप, खुदा आपको सलामत रहे। बाबुल हवाइज आपके हामी और नासिर हो सकते, बाबुल हवाइज आपकी हर हाजत को कबूल फरमाए। जैसे आपने सुना इमाम मुर्शिद आज़म के साए में आपको देता हूँ, आपको कोई बीमारी नहीं है, खुदा आपको सलामत रखे। ताकि ये कूफे तक के लिए तुम्हारे लिए काफी है, कूफे तक के लिए तुम्हारे लिए काफी है। और एक बार कहा वो सवालात, और मौला ये सवालात हैं और सवालात बंधे हुए थे, अभी खुले नहीं थे, उन पर मोहर लगी हुई थी, सील थे। सील समझते ना कि उसको खोला नहीं जाता, सील लगाई ही इसलिए जाती है कि अगर अपनी मंजिल पर पहुंचे और सील खुली हुई हो तो लेने वाला समझ जाए कि इसमें खयानत की गई है। सील खोला भी नहीं गया था। इमाम ने वो कागज जिन पे सवालात लिखे हुए थे अभी अपने हाथ में लिए और एक बार रावी कहता है अपनी आस्तीन से कागजात निकाले, कहा ये इन सवालात के जवाबात हैं। ये इन सवालात के जवाबात हैं। जाओ सवाल के जवाब मिल गए, मौला सलामत रखे, मौला सबको शिफा अता करे। मैं दुआ दे चुका, मेरी तरफ देखना, कहा ये इन सवालात के जवाबात हैं। और कहा मौला ने कि तुमने ये कहा कि रोज़ा रसूल की ज़ियारत करनी है तो ज़ियारत तो तुमने कर ली, कैसे कह दिया इमाम मुर्शिद आज़म कि रोज़ा रसूल की ज़ियारत करनी, कैसे कह दिया? अभी तो वो गए ही नहीं तो न कहता मेरा मौला मुर्शिद आज़म। अगर ये रिवायत सामने ना होती कि मेरे मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 25 या 26 वर्ष के हैं, अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, हाथ में असा है और ऐसे में इमाम अबू हनीफा आ गए इमाम सादिक की ज़ियारत के लिए, इसलिए कि शागिर्द है ना, तो शागिर्द उस्ताद को सलाम करने आ गया। इमाम अबू हनीफा दरवाजा जाफर सादिक पर आए सलाम करने, देखा मेरा मौला जाफर सादिक 26 वर्ष का है, दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं और हाथ में असा है। इमाम अबू हनीफा ने सलाम किया और सलाम करके कहा आप तो जवान हैं, आपको असा की क्या जरूरत है? जवान को असा के सहारे की क्या जरूरत है? आपको अभी सेहतमंद है, आपने असा का सहारा क्यों लिया हुआ है? तो इमाम सादिक ने इरशाद फरमाया कि मैंने ये असा किसी सहारे के लिए नहीं लिया है। फिर क्यों आया हाथ में? कहा ये मेरे नाना रसूल अल्लाह का असा है। इमाम कासिम ने क्या कहा कि रसूल की ज़ियारत कर ली, याद है, और मैंने कहां से
जमना मोड़ा है कि रसूल अपने दौर में उलिल अम्र, तो अब वही उलिल अम्र हो जो रसूल जैसा हो। फिर मैंने आयत पढ़ी, अगर भूल गए, कि हमने अपनी किताब का वारिस मुस्तफा जैसे मुस्तफा को बनाया है। तीन दावों की एक दलील आपके हवाले कर रहा हूं और तीनों को दलील के साथ वाज़ेह करते हुए आगे पहुंचाना। एक बार इमाम सादिक ने कहा कि किसी सहारे के लिए नहीं बल्कि रसूल का असा है, जिसे मैंने बरकत के लिए अपने हाथ में रखा है। जैसे ही ये अकीदा इमाम अबू हनीफा का है, जैसे ही उन्होंने ये सुना कि सादिक के हाथ में, इमाम सादिक के हाथ में रसूल सादिक का असा है, इमाम सादिक के हाथ में रसूल सादिक का असा, पैगंबर का असा जो पैगंबर के हाथों में रहता था। इमाम अबू हनीफा जल्दी से आगे बढ़े और इमाम सादिक से कहा, मेरा असा से हाथ उठाइए, मैं इस असा को चूमना चाहता हूँ। ये जुमला महफूज करना था आपको, असा से हाथ उठाइए, मैं इस असा को चूमना चाहता हूँ। यानी जो चीज किसी उलिल अम्र से मंसूब हो जाए उसे चूमना जायज है, बिदअत नहीं है। चुमना चाहता हूँ, ये रसूल का आशा है, मेरा हाथ हटाइए, मैं ऐसे चुमना चाहता हूँ। अब जलाल के आलम में इमाम सादिक ने कहा, ये आशा लकड़ी का आशा है, लकड़ी का आशा है, रसूल से मस हुआ तो तुम चुमना चाहते हो। एक बार आस्तीन ऐसे की और कहा, इन रगों में रसूल का लहू डाल रहा है। लकड़ी का है, हमारा गोश्त तो रसूल का गोश्त है, हमारा लहू तो रसूल का लहू है, हमारी हड्डियां तो रसूल की हड्डियां। यही तो अली से कहा था रसूल ने, लहम का दमी या अली, दम का दमी या अली, हज़्म का हज़्मी या अली, जिस्म का जिस्मी या अली, उज़्म का उज़्मी या अली, रूह का रूही या अली, नूर का नूरी या अली, अक्ल का अक्ली या अली, ऐन का ऐनी या अली, वजह का वजही या अली, लिसान का लिसानी या अली, अंता मिन्नी वाना मिनका या अली। तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी आंख मेरी आंख, तेरा नूर मेरा नूर, तेरी रूह मेरी रूह, तेरी जबान मेरी जबान, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, तेरे हाथ मेरे हाथ, तेरे कान मेरे कान, तू मैं तू। यानी रसूल की मुकम्मल शबीह है हर वारिस रसूल। तो अपने दौर में मूसी काज़िम शबीह मुस्तफा, तो अब जिस तरह अम्र का इस्तेमाल अपने दौर में रसूल करते थे, वैसे ही अपने दौर में सातवां वारिस रसूल मूसी काज़िम ने इस्तेमाल किया और जैसे अल्लाह चाहता था वैसे किया। कोई मसला नहीं है, कोई मरहला नहीं है इमाम के लिए, हुज्जत के लिए, मासूम के लिए, कि चाहे वो घर से बाहर आजाद हो, चाहे वो कैद में, इसलिए कि हर जगह उलिल अम्र है। जिस साल मूसी काज़िम कैद में थे उसी साल रमजान भी आया, उसी रमजान में लैलतुल क़द्र भी आया और उसी लैलतुल क़द्र में अम्र भी उतरा। तो अम्र वो थोड़ी गया था कि जिंदान में थोड़ी जाऊंगा, कैद खाने में अम्र कैसे जाएगा? नहीं, जहां उलिल अम्र होगा वही अम्र खुदा जाएगा। तो जहां उलिल अम्र है वही अम्र खुदा होगा। तो अगर आज का उलिल अम्र रमजान में 19
21 کو یا 23 کو کسی مجلس میں آ جائے تو امر خدا مجلس ہی میں اترے گا. جہاں پر الامر ہوگا وہیں امر خدا کا نزول ہوگا اور کل کا کل امر خدا ہوگا. اس لیے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک رابطہ، ایک وسیلہ، ایک واسطہ قرار دیا، اور پھر اللہ اس بندے سے جو اس کا رابطہ، واسطہ اور وسیلہ حجت ہے اس سے براہ راست بات کرتا ہے، اس پر امر کرتا ہے ملائکہ کے ذریعے، روح کے ذریعے، جس کے ذریعے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کیسے زندگی گزارنا. سن 60 ہجری کے رمضان میں شب قدر میں عمرو حسین پر اترا. اپنے دور کے اولیاء حسین بن علی تھے. تو جہاں پورے انسانوں کی تقدیریں اتری وہیں پر اس تقدیر کا بھی اعادہ ہوا اور آموختہ ہوا. اللہ نے کل کا کل امر اس سال حسین بن علی پر اتارا اور تمام انسانوں کی تقدیریں بتائیں حسین کو. ہر انسان کی تقدیر حسین پر اتری. زمین و آسمان کی تقدیر آ گئی، سورج چاند ستاروں کی تقدیر آ گئی، حسین بن علی پر اتری. اور حسین کو معلوم ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی سانسیں دینا ہے، کس کو شفا دینا ہے، کس کو زندگی، کسے موت. سب کی تقدیریں حسین کو معلوم ہے. نام بنا یہ بھی حسین کو بتا دیا گیا کہ حسین تمہاری تقدیر میں یہ ہے کہ سن 61 ہجری کے 11 محرم کو اس دنیا میں ہو گئے. حضرت محمد اللہ اسی تقدیر خدا کا اعادہ جو حسین کو پہلے سے معلوم کہ حسین یہی برس ہے وعدے کے نبھانے کا. حسین تمہارا بیٹا علی اکبر اس کی بھی تقدیر اتارنا، علی اصغر کی تقدیر بھی اتارنا، تمہاری بہنوں کی تقدیر بھی اتار رہا، تمہارے بھائیوں کی بھتیجوں کی تقدیر بھی اتار رہا، تمہارے دوستوں کی تقدیر بھی اتار رہا. حسین ان سب کی تقدیر میں نے بہت بلند کر دی ہے. ان کی تقدیر میں نے کعبہ قوسین پہ لکھی ہے. یہ اتنے بلند ہیں کہ ان سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہے. ان کی تقدیر پہ آج میں نے دستخط کر دیا کہ یہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد وہاں پہنچیں گے کہ ہم حسین تقدیر علی اکبر یہ ہے کہ جگر میں پرچی کا پھل لگے. تقدیر علی اصغر یہ ہے کہ تیر گردن سے پار ہو جائے. تقدیر قاسم یہ ہے کہ لاش پامال ہو جائے. تقدیر اور محمد یہ ہے کہ دونوں کی لاشیں ماں کے سامنے پڑے ہوئے ہوں. بہنوں کی تقدیر یہ ہے کہ تمہارے ذبح ہوتے ہی سروں سے چادر اتر جائے. عباس کی تقدیر یہ ہے کہ بازو کٹ جائیں گے. حسین تقدیر یہیں پر ختم نہیں ہوگی. مسلم کے 2 بچوں کی تقدیر بھی عجیب ہے کہ یہ 2 بچے بھی کربلا کے شہیدوں میں شمار کرتا. یہیں سے کربلا کے درد کا آغاز ہو جائے گا. حضرت محمد اللہ جب بات آ گئی تو گریہ آپ کا واجب ہو جاتا ہے. معلوم ہے نا آج 2 چھوٹے چھوٹے تابوت برآمد ہوں گے، ننھے تابوت برآمد ہوں گے. یہ 2 ایسے بچے ہیں مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں. یہ 2 ایسے بچے تھے جو اپنی ماں سے بھی بچھڑ گئے، اپنے باپ سے بھی بچھڑ گئے. ماں نے باپ کے حوالے کیا تھا. باپ مسلم جیسا سفیر حسین مسلمانوں کے شہر کوفے میں آیا تھا. انہی مسلمانوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ یہ نبی کے نواسے کا نمائندہ ہے، نبی کے نواسے کا سفیر ہے. چلو سفیر سے تمہیں کوئی مسئلہ تھا، بچوں پر تو رحم کر لیتے، بچوں پر تو رحم کرتے. کیا گزر رہی ہے مسلم پر کہ چاروں طرف سے مسلم کو گھیرا جا رہا ہے. 8 ذی الحجہ جب آئی اور یقین ہو گیا کہ اب جنگ مقدر ہے تو جناب ہانی کے گھر میں جب تک تھے تو جناب ہانی کے گھر سے بالکل ملا ہوا گھر قاضی شریح کا گھر تھا. یہ 60 سال قاضی رہا ہے، 60 سال قاضی رہا ہے. قتل حسین کا فتویٰ بھی اسی نے دیا تھا. 60 سال اپنی تمام تر سازشوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 60 سال قاضی رہا. کسی دور میں اسے قاضی کوفے کا بنایا گیا. علی کا جب دور خلافت آیا تو علی نے چاہا کہ اسے ہٹائیں، لیکن اس نے اتنے پنجے مضبوط کر لیے تھے کہ کوفے میں ایک سازش برپا ہو جاتی اور بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی. تو علی نے برقرار رکھا. 60 سال قاضی شریح رہا. ہانی کے گھر کے بالکل برابر میں گھر. ہانی کے ایک دوست نے کہا، جناب مسلم سے کہا کہ بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، کل صبح جنگ مقدر ہو چکی ہے، میں بات کرتا ہوں قاضی شریح سے، بچوں کو خوش دل کے لیے اس کے پاس امانتاً رکھ دیتا ہوں. جیسے گھر میں گیا تو قاضی شریح کے گھر والیوں نے، گھر کی خواتین نے تھوڑا سا رحم کا اظہار کیا. کہاں بچوں کو یہاں رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں.
दूसरे दिन मुस्लिम जंग में शहीद हो गए, मुस्लिम की शहादत हो गई। मुस्लिम ने बस ज़िबा होने से पहले यही कहा कूफे वालों से, कूफे वालों कल ईद मनाओगे, कूफे वालों कल ईद मनाओगे। मैं देख रहा हूँ कुर्बानी के जानवर लेने के लिए निकले हुए हो, साथ में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बस तुमसे हुसैन का सफीर ये चाहता है कि मेरे साथ भी 2 बच्चे आए थे, उनका ख्याल रखना, और अगर मिल जाए तुम्हें, कहीं तुम्हारे हाथ लग जाए तो उन पर जुल्म न करना, उन्हें मदीने की राह दिखा देना, मदीने की राह दिखाना। मुस्लिम जंग कर रहे हैं, बच्चों को खबर ही नहीं कि बाहर बाबा का क्या हाल हो रहा है। ये जुमला रोने के लिए काफी था। बच्चे कमरे में रख दिए गए हैं छुपा कर, इसलिए कि इनको भी खतरा है कि अगर हाकिम को पता चल गया तो हाकिम हमें ही खत्म न कर दे। बच्चों को छुपा दिया गया, बाहर की खबर बच्चों को है ही नहीं कि बाबा के साथ क्या हो रहा है। मुस्लिम का सर कट के दारुल हमारा से नीचे गिरा, बच्चों को खबर ही नहीं कि बाबा का सर कट गया। मुस्लिम की लाश को कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था, बच्चों को खबर ही नहीं कि बाबा की लाश के साथ क्या हो रहा है। लाश पर बच्चे हंस हंस कर, खिलखिला खिलखिला कर, कहे लगा कर, तालियां मार के, सीटियां मार के लाश पर पत्थर मार रहे थे। बच्चों के हंसने की आवाज 2 बच्चों तक तो आ रही थी, लेकिन इन मुस्लिम के बच्चों को यह पता ही नहीं था कि कूफे के बच्चे किस पर हंस रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारे बाबा के जिस्म पर पत्थर मारे जा रहे हैं। मुस्लिम की लाश कूफे के दरवाजे से लटका दी गई, बच्चों को खबर नहीं कि बाबा की लाश कूफे के दरवाजे से लटका दी गई है। काफिला 12-13 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला, ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तो खारदार, और साथ में इन्हीं बच्चों की कुटियाँ जिनके सरों पर बिलाएं नहीं थी। वही काफिला लुटा हुआ 13 मुहर्रम को कूफे में आ भी गया। दरबार कूफा में खुतबा दे भी दिया, बच्चों को खबर ही नहीं कि हमारी माँ भी लुटे हुए काफिले के साथ आई। बच्चे सरासीमा सहमे हुए बार बार पूछते हैं, हमारे बाबा कब आएंगे, हमारे बाबा कब आएंगे, हमारे बाबा कब आएंगे। बताया नहीं गया बच्चों को कि तुम्हारे बाबा शहीद हो गए, क्या अभी आ जाते, अभी आ जाते, खाना खा लो। काफी दिन गुजर गए, बच्चों ने एक दिन तय किया कि आज खाना नहीं खाएंगे जब तक हमें बताया ना जाए कि हमारे बाबा कहाँ हैं। बच्चों ने खाना खाने से इनकार किया। काजी शुरा को बुलाया गया, कहा कि अच्छा मैं वादा करता हूँ कि सुबह तक तुम्हारे बाबा की खबर ला के दूंगा, खाना खाना बच्चों ने खा लिया। ये पूरा महीना गुजर चुका बच्चों को इसी जगह। आखिर इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि मैंने सुना है कि मुस्लिम के 2 बच्चे भी साथ थे। वो बच्चे कहाँ हैं? मुझे वो बच्चे अपने पास चाहिए, और मैं इस दरबार में ऐलान करता हूँ जहाँ भी मुझे पता चला कि वो बच्चे किसी के पास हैं, मुझे मालूम हुआ तो मैं उस शख्स को कत्ल कर दूंगा और उसके घर में आग लगा दूंगा। काजी शुरा को मालूम हुआ, लरसने लगा। उसने कहा कि मेरा घर भी जल जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बच्चों के पास आया, कहा कि बच्चों मेरी जान खतरे में है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे घर भेजा जाए, तुम्हारे माँ बाप के पास? का क्या ही अच्छा है कि भेज दो। का रात आएगी, तुम्हें एक राह ले जाएगा, कूफे की सरहद पर काफिले जा रहे हैं, उन काफिलों में से एक काफिला नजफ हो जा रहा है, तो तुम उस काफिले के साथ शामिल हो जाओ और चले जाओ। बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा राह दिया, बच्चों को रात को छोड़ दिया, कहा इससे आगे हम नहीं जा सकते, इसलिए कि पहरा है। यहाँ से देखो सीधा रास्ता जा रहा है, और जहाँ इस रास्ते का आखिर होगा वहीं वो काफिले खड़े होंगे। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चले, 8 और 9 बरस का सिन है बच्चों का। आहिस्ता आहिस्ता खूब अंधेरा है, जंगल से होते हुए जा रहे थे, सहमे हुए, डरते हुए, बचते हुए, खौफ खाते हुए। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बच्चे थे। जब पहुंचे तो देखा वो काफिला जा चुका था। दूर से देखा कि शायद काफिला नजर आ जाए, पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन पूरी रात घूमते रहे, काफिला उनसे ना मिल सका। सुबह हुई तो देखा कूफे ही में है, कहीं छुप के बैठ गए। एक बार हसीन इब्न नबीर का लश्कर आ रहा था, उसने देखा वो दूर 2 बच्चे बैठे हुए हैं। पूछा तुम कौन हो? बच्चे हैं आले मोहम्मद के घराने के, उनको क्या पता कि सियासत क्या होती है, माहौल क्या होता है। मैं ये बताओ कि अगर हम तुम्हें बता दें तो तुम हमें मारोगी तो नहीं?
तुम हमें मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा। कहा हम मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे अपने बाबा से पूछा। अजीज अमीर मलाउन ने कहा अच्छा हमारी तो तलाश बच्चों को लिया दरबार में आ गया। कहा ये मुस्लिम के बच्चे का कैद कर दो, मशहूर जिंदान में मशहूर की जिंदान में कैद कर दो। बच्चे कैद रहे 6-7 महीने वही कैद रहे। रोज याद करते थे न मालूम अम्मा कहाँ हो, न मालूम पापा कहाँ हो। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते थे, भैया आज अम्मा बहुत याद आ रही है, भैया आज बाबा बहुत याद आ रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि छोटे ने कहा भैया ये तो मशहूर जिंदान है, इससे कम से कम बताएं तो कि हम हैं कौन, शायद इसके दिल में रहम आ जाए। भैया आज अम्मा बहुत याद आ रही है, दिल चाह रहा है कि अम्मा की गोद में सर रख के सो जाओ, बाबा के कदमों को छूना चाह रहा हूँ, अपने घर में सोना चाह रहा हूँ, कब तक ऐसे रहेंगे। बड़े भाई ने कहा कि कैसे बता दूँ, तुम्हें तो पता है जब भी हम बताते हैं कि हम कौन हैं, कभी हमें दाएं रफ्तार का तमाशा दिखता है, कभी बाएं रफ्तार का तमाशा दिखता है। छोटा बहुत जिद करने लगा, बहुत ज्यादा रो रहा था, इब्राहिम बहुत ज्यादा रो रहे थे। कहा भैया मोहम्मद बता दो, शायद रहम आ जाए। बार बार बड़ा भाई कह रहा था कि नहीं बता सकते, हम पर बहुत तशद्दुद होगा। जब छोटे भाई की जिद बहुत बढ़ गई और रो रहा था चीख मार मार के, ऐसे में मशहूर आ गया। बड़े ने कहा अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ। छोटे बच्चे सोचो, छोटे बच्चे कैसे मामला फहमी करते हो। जैसे जिंदान मान आया, बड़ा भाई आगे बढ़ा, कहा कि तुझसे कुछ कहना चाहते हो। कहो क्या कहना चाहता है। कहा तू रसूल खुदा को जानता, उनको मानता? मानता हूँ, क्यों नहीं मानता, नबी आखिर कलमे में उनका नाम। कहा कि उनकी एक बेटी है फातिमा ज़हरा, क्या उनको मानता? क्या क्यों नहीं, मेरी जान उन पर कुर्बान। इनके दिल में थोड़ी सी हिम्मत आई। कहा कि क्या तू अली इब्न अबी तालिब को मानता है? कहा वो मेरे मौला है। क्या अली इब्न अबी तालिब के बेटे हुसैन को मानता है और जानता है? वो मेरे आका है। क्या हुसैन के सफीर मुस्लिम को जानता है? क्या जानता और क्यों नहीं जानता? अफसोस है कि उनकी नुसरत न कर सका। जैसे ही लफ्ज़ सुना दोनों भाई चीख मार के कहते हैं उसी मुस्लिम के बच्चे, उसी मुस्लिम के बच्चे जैसे ही मशहूर ने सुना सर से अमामा फेंक के बच्चों का कदमा भी दिया, बच्चों के कदमों को चूम रहा था। ने लिखा बच्चों के कदमों को अपने आंखों से लगा रहा था, कान से चूम रहा था। और एक बार ऐसे हाथ जोड़ के कहता शहजादो सुनेंगे, शहजादो बिनते रसूल से मेरी शिकायत है, मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था कि आप सादात के घराने हैं, मुझे माफ कर दीजिए। कहा हमारी अम्मा कहाँ है, हमारे बाबा कहाँ हैं, जाना चाहते हैं। क्या मैं आज ही इंतजाम करता हूँ, रात को आप अपने घर पर होंगे। रात आ गई, अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटे इन दोनों बच्चों को लेके उस जगह जाना जहाँ कासिया की तरफ दाखिले जा रहे हैं, और फला फला आदमी है उसे ये पैसे देना और कहना इन बच्चों को कासिया पहुँचा दे फला इंसान के पास, और उस इंसान के लिए खत है कि वो जो शख्स है वो इनको मदीने पहुँचाए। दरे कूफा से फसीले कूफा से बाहर कोई जा नहीं सकता। कभी उस दौर के जोग्राफियाई हालात पर भी गौर करो कि कितना पुरखतर दौर था आले मोहम्मद के चाहने वालों के लिए। करबला हो चुकी थी और वो तमाम मामला जो इनकलाब के थे वो सब इतना सख्त पहरा लगा हुआ था। फसीले कूफा, इधर से मशहूर के बेटे ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, छुपता छुपाता बड़ी मुश्किल से कूफे की दरवाजे से, कूफे की दीवार से उनको पार करा दिया। और उसने भी यही कहा कि आगे मैं जा नहीं सकता, ये सीधा रास्ता है, आप जाइएगा कासिया का काफिला वहां पर। बच्चे गए, रात भर बच्चे कूफे ही में गश्त करते रहे। सुबह हुई तो देखा कूफे में है, दोनों ने एक दूसरे से गले लेकर कहा हाय हमारी किस्मत। क्या थक तो नहीं रहता, अभी तो मैंने मसाइब शुरू किए, इजाजत है कि तफसील से पढ़ूंगा, खत्म कर दूँ मसाइब। एक मंजर दिखाना चाहता हूँ जो शायद तुमने अभी तक सुना नहीं होगा, इसलिए कि जो जुल्म हुआ है उसे बताना चाहता हूँ मुसलमानों तक के बच्चों के साथ हुआ क्या है। हाय हमारी किस्मत, पूरी रात सफर करते रहे, कूफे से बाहर ही नहीं गए, छुप के एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ गए कि शाम होगी तो फिर उतरेंगे, फिर देखेंगे कोई रास्ता, फिर
फिर देखेंगे कि शायद कोई काफिला जा रहा हो। सुबह हुआ तो एक दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ गए छुप। एक औरत आई, नीचे दरिया था, पानी भरने के लिए आई। उसने जैसे ही अपने बर्तन को दरिया में डाला, उसने दरिया की सतह पर देखा कि दो बच्चों के प्यारे प्यारे से चेहरों के अक्स नजर आ रहे, दरख्त का अक्स और दरख्त पे बैठे हुए बच्चों का अक्स। एकदम उसने ऊपर देखा तो दो नन्हे नन्हे से खूबसूरत चांद बैठे हुए थे। उस औरत ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा कि बच्चों ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, चुप लग जाएगी, आ जाओ नीचे आ जाओ बच्चों, कुछ नहीं कहूँगा। बच्चों ने इतनी देर बाद प्यार भरा लहजा सुना, नीचे आ गया। उस कनीज ने कहा कि कौन हो, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपने घर क्यों नहीं जाते। बच्चों ने कहा जिसका कोई घर हो वो घर जाए, जिसको पता हो कि उसकी माँ कहाँ है वो माँ के पास जाए। कभी जरूरत भी कौन हो, हाँ अगर हम पर जुल्म न करें तो बताएं कौन है। क्या बताओ, कहा हम मुस्लिम के बच्चे, हमारे बाबा का नाम मुस्लिम। वो कनीज भी कदमों पे गिरी, शाहजादों को चूमा और कहा मेरी मालिका आले मोहम्मद की चाहने वाली है, चलो मैं अपनी मालिका के पास में ले चलती हूँ। घर में आई, मालिका ने जैसे ही सुना कि फातिमा के घर के बच्चे आ गए, उसने कदमों के सर पर रखकर कहा हाय मेरे घर के फर्श की किस्मत, सादात के घराने के बच्चों के कदम मेरे फर्श पर आ गए। बच्चों की खिदमत की, नहलाया धुलाया और उसके बाद कहा मैं खाना लगाती हूँ, आप खाना खाइए और हुजरे में सो जाइए। बच्चों ने कहा भूख प्यास तो खत्म हो चुकी है, न मालूम अम्मा कहाँ है, न मालूम बाबा कहाँ है, न मालूम घर वाले कहाँ है। अगर कुछ कर सकती हो तो हुजरे में दो मुसल्ले बिछा दो, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। मुसल्ले बिछा दिए गए, बच्चों ने नमाज पढ़ी, आधी रात भीग गई, बच्चे सो गए। हुजरे का दरवाजा बाहर से मोमिना ने बंद कर दिया, बच्चे सोए तो बच्चों ने ख्वाब देखा। ख्वाब दोनों ने एक ही देखा, दोनों के इख्तियार चौंक पर उठे, रो रहे थे। दोनों ने कहा क्या हुआ, दोनों ने कहा ख्वाब देखा, एक ही ख्वाब देखा। कहा भैया ख्वाब ये देखा कि रसूल अल्लाह की बज़्म सजी हुई है, रसूल अल्लाह भी बैठे हुए हैं, हमारी दादी फातिमा ज़हरा भी बैठी हुई है, अली इब्न अबी तालिब भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं। ऐसे में रसूल अल्लाह ने कहा मुस्लिम नजर नहीं आ रहे, मेरे बेटे हुसैन का सफीर मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। तो फौरन हमारे बाबा मुस्लिम भी उस बज़्म में आ गए, रसूल अल्लाह को सलाम किया, रसूल अल्लाह ने जवाब सलाम दिया। तो फौरन रसूल अल्लाह ने हमारे बाबा मुस्लिम से पूछा मुस्लिम तुम्हारे दो बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारे दो बच्चे कहाँ हैं। तो बाबा ने रसूल अल्लाह से कहा कि रसूल अल्लाह बस थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं, थोड़ी क्या सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ बदल हो रहा है, थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं। भैया ऐसा लगता है हमारी आखिरी रात आ गई, हमारी आखिरी रात आ गई। यही वो वक्त था जब हारिस मलऊन घर में दाखिल हुआ और उस हुजरे के सामने से गुजर रहा था, बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ से पूछा कि हुजरे में कौन है। कहा कोई नहीं है, तेरे कानों में ऐसे ही आवाज़ आ रही है। नहीं मुझे आवाज़ आ रही है। कहा नहीं आगे जा, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कहा नहीं जब तक देख नहीं जाऊँगा हुजरे में कौन है आगे नहीं जाऊँगा। उसने एक बार हुजरे की कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला तो लिखने वाले ने लिखा, मीर अनीस ने लिखा कि वहाँ मुस्लिम में मजलूम के प्यारे नजर आए, एक बुर्ज में दो अर्श के सारे नजर आए, मुस्लिम के बच्चे नजर आए। एक बार इस जालिम ने पूछा कौन हो तुम दोनों बच्चे, इख्तियार कहा मुस्लिम के बच्चे हैं। उसने कहा पूरी रात हो गई, 3 रातें 3 दिन हो गई, कूफे में मारा मारा फिर रहा हूँ कि तुम्हें तलाश करूँ। इसलिए इब्न ज़ियाद ने कहा जो लेके आएगा उसे 1000 दिरहम इनाम में दूंगा। पूरी 3 दिन और 3 रात और तुम मेरे घर में ही मिल गए, चलो मैं तय करके ले चलता हूँ। बच्चों को बाहर लाया, बच्चों को हुजरे से बाहर लाया, सहज में खड़े कर दिया। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। जरा उस हारिस की माँ से पूछना कि बच्चों को हुजरे से कैसे बाहर लाया। माँ ने बताया दोनों को गालों से पकड़ के तस्वीर हुआ बाहर लाया। बच्चों के कदम जमीन पर फट रहे थे, बच्चों को बीच सहज में एक सुकून से रस्सियों से बांध दिया। सुबह होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह ऐसे नहीं हुई। कभी मोहम्मद के तमाशा मारता था, कभी इब्राहिम के तमाशा मारता था। हर तमाचे पर बच्चे याद करते थे, आए बाबा, आए अम्मा, गिरिया करो गिरिया करो। सुबह हुई तो बच्चों को लेकर चला, बच्चों में कत्ल करूंगा। माँ ने कहा कत्ल क्यों करेगा, अरे आले मोहम्मद के घराने के बच्चे हैं। माँ कदमों पे गिर गए। एक बार उसने तलवार उठाई, माँ का हाथ कट के गिरा, बच्चों को लेकर आगे बढ़ा।
साथ में उसका हफ्सी गुलाम भी था। जैसे ही दरिया के किनारे लाया, हफ्सी गुलाम से ले तलवार, दोनों बच्चों की गर्दनें उड़ा दे। हफ्सी गुलाम तलवार लेके आगे बढ़ा, मोहम्मद इब्राहिम के करीब आया। मोहम्मद इब्राहिम ने हफ्सी गुलाम को देख कर कहा, लगता है कि तू बिलाले हफ्सी की नस्ल से है, तू बिलाले हफ्सी की नस्ल से। एकदम शौक के कहता, तुम कौन हो? कहा, बिलाले हफ्सी के जो आका थे ना रसूल अल्लाह, हम उनकी नस्ल में, हम उनके बच्चे हैं। कौन हो? हम मुस्लिम के बच्चे हैं, मोहम्मद इब्राहिम। मैं भी चाहने वाला हूँ तुम्हारे घरों का, मुझे इस मलऊन ने बताया ही नहीं। एक बार जैसे ही पलटा हारिस ने तलवार उठाई और उस गुलाम की गर्दन काट दी। नहीं, उसका लाशा तड़प रहा था। एक शख्स कहता रहा, माँ कहती रही, बीवी कहती रही, गुलाम कहता रहा, किसी की ना मानी। एक बार दरिया के किनारे ले आया, दरिया के किनारे लाया, कहा, अब मैं ही रह गया हूँ, मैं ही तुम्हारी गर्दनें काटूंगा, मैं ही तुम्हारी गर्दनें काटूंगा। बच्चों ने कहा, सुन तू हमें जिंदा ले जा इब्न ज़ियाद के पास, जिंदा ले जा और तुझे इनाम देगा। नहीं, ये नहीं करूँगा, तुम्हारी गर्दनें काट के ले जाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जिंदा लेकर जाऊँ और रास्ते में कोई तुम्हें मुझसे छीन ले और वो इनाम ले जाए। अच्छा ये कर ले कि हमारी जुल्फें काट दे और हमें गुलामों की तरह बेच दे, हमें बेच दे गुलामों की तरह, उससे ज्यादा तुझे कीमत मिल जाएगी। कहा, ये भी नहीं करना है। अच्छा ये तो कर कि इब्न ज़ियाद ने तुझे 1000 दिरहम देने का वादा किया है, हमें हमारे घर पहुंचा दे, हम तुझे 10 गुना ज्यादा इनाम दिलवाएंगे। बच्चे हुज्जत कायम कर रहे थे कि इसके अंदर शैतान ने हुलूल किया हुआ है। कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ इनाम चाहिए, सिर्फ इनाम चाहिए, तुम्हारी गर्दनें काटूंगा। अच्छा कुछ नहीं कर सकता तो ये तो कर सकता है, 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत है, पढ़ लो नमाज अगर तुम्हारे कोई काम आती है। दोनों ने नमाज पढ़ी। 8 और 9 बरस के बच्चे, ये है आले मोहम्मद का घराना। इसलिए बैठकर 14 बरस से जिक्र कर रहे हैं कि नमाज बचाने वाला यही घराना है। यहाँ के तो बच्चे भी हाफिज नमाज है। 8 और 9 बरस के बच्चे बैठ गए, नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज जैसे ही शामिल हुई, एक बार आगे बढ़ा, मोहम्मद की गर्दन को पकड़ा। इब्राहिम ने कहा, मेरे साथ मेरे भाई को बात ना कर, पहले मेरी गर्दन काट ले। क्या सुन रहे थे अजीजों, पहले मेरी गर्दन काट ले। कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे छोटे की गर्दन काटूं चाहे बड़े की गर्दन काटूं। मोहम्मद की गर्दन को पकड़ा, भाई के सामने भाई के गले को काटा। कोई मामूली जुमला नहीं कि मुसलमानों, भाई के सामने भाई के गले को काटा। मोहम्मद का गला कटा, खून की धार थी जो बच्चे के गले से बरामद हुई और जमीन पर सर देती हुई जा रही थी। सर को एक जानिब रखा, तन को उठाया, जिस्म को उठाया, फुरात की लहरों के हवाले किया। लेकिन रावी कहता है कि उस वक्त तो कलेजा फट गया कि बच्चे का लाशा फुरात की लहरों पर रुका हुआ था। इब्राहिम के करीब गया, इब्राहिम की गर्दन को काटा, गर्दन को एक तरफ रखा, दूसरे भाई की लाश को फुरात की लहरों के हवाले किया। जैसे ही दोनों भाइयों के लाशें फुरात की सतह पर आए, दोनों एक दूसरे से बदल गिर गए। चाहता तो यही मसाइल खत्म कर देगा, लेकिन सिर्फ एक रवायत सुन लेना तो देखो बच्चों के साथ हुआ क्या। दोनों की गर्दनों को उठाया, बालों से पकड़कर गर्दनों को उठाया। दरबार इब्न ज़ियाद में आया, इसने बारियाबी चाहा, इब्न ज़ियाद ने कहा बुलाओ। जैसे ही आया, जालिम के हाथ में 2 नन्हे से सर देखे, बेख्तियार खड़े होकर कहता, और जालिम किस माँ की गोद उठार के आया? थक गए हो तो मुझे बता दो, किस माँ की गोद उतार के आया? भाई मुस्लिम के बच्चे हैं, नाम दे मुझे। क्यों इनाम लूं? अरे तो कहा जिंदा लेकर आना। ज्यादा इनाम की लालच में उनकी गर्दन काट के लाया। ये बता तूने बच्चों के साथ किया क्या? जब ये सुनेंगे जुमला तो मैं कसम चाहता हूँ जो जुमला कहने जा रहा हूँ बस कम आए जरूर कह। इब्न ज़ियाद ने कहा, ये पहली मरतबा दोनों बच्चे जब मेरे दरबार में आए थे, इनके चेहरे से नूर फूट रहा था, इतने हसीन चेहरे से, रोशन रुखसार से। अरे तूने इनके साथ किया क्या है? इनके रुखसार कटे हुए हैं, इनके बाल कल से हटे हुए हैं, इतने हसीन बच्चों के साथ तूने किया क्या सब किया? एक एक्शन बता ताकि तूने मेरी हुक्मदूरी किया, मैं तुझे सदा बच्चों को आखिर में कहा गया, दो रकात नमाज पढ़ने के बाद कहा था, परवरदिगार तू हमारा फैसला करने वाला, तेरा फैसला होगा, बच्चों की दुआ कबूल होगी, तेरा फैसला होगा। सुनेंगे एक बार कहा, कोई है जो इन बच्चों के सरों को धो कर दिया, तो उसका मोड़ के बाद
जुल्म ही था कि भरे दरबार में एक तो बच्चों के कटे हुए सर आ रहे हैं और फिर कह रहा है कोई है जिन बच्चों के सरों को धो कर ले आया। एक हबशी गुलाम था आले मोहम्मद का चाहने वाला, उसने कहा अमीर मुझे दे देते। बच्चों के सरों को लेकर घर में चला, अपनी बीवी को बुलाया, कहा दो यतीम बच्चे हैं सर कट के आए हैं, इन बच्चों के सरों को धो दे। जुमला कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जब मैंने पढ़ा कलेजा फट गया। वो गुलाम की बीवी बच्चों को देख कर टहल गई, नन्हे से 8 और 9 बरस के 2 बच्चों के कटे हुए सर पाक पानी लेकर आई, बच्चों के सरों को धुला धुला कर कहती थी ना मालूम किस माँ की गोद में पड़े हुए, ना मालूम तुम्हारी माँ को खबर भी है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ना मालूम तुम्हारी माँ को खबर भी है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अरे मैं तो कहती हूँ तुम अपनी माँ से जुदा ही क्यों हुए थे। चौथा जुमला सुनेंगे, अरे मैं दुआ करती हूँ काश तुम्हारी माँ पहले मर गई हो, काश तुम्हारी माँ पहले मर गई हो। हाय हाय क्या गिरिया कर रहे हो। सर उठाए दरबार में आए, खत्म हो गई बात। जब आखिरी जुमला कहूँगा ताबूत बरामद करना, बस 2 जुमले कहने की इजाजत देना। इब्न ज़ियाद ने कहा हारिस को वहीं ले जाओ जहाँ इसने बच्चों को मारा था, जहाँ बच्चों को मारा था। जल्लाद लेके चला, साथ में पूरा दरबार भी है, रिवायत में लिखा है इब्न ज़ियाद भी है। एक बार जैसे ही उस मकाम पर पहुंचा जहाँ बच्चों के गलों को काटा गया था, देखा दूर से एक लहू की धार है जो बहती हुई उस मकाम पर आ रही है जहाँ बच्चों के गलों को काटा था। खत्म हो गई बात। इब्न ज़ियाद ने तड़प कर कहा और सालिम ये मट्टी पर निशान कैसे है, ये मट्टी पर निशान कैसे है। उसने कहा अमीर मैं बच्चों के गलों को काट रहा था, बच्चे एड़ियां लगा लगा के कह रहे थे हमें नमाज हमारी अम्मा के पास ले चल। हाय हुसैन मुसय्यब में दफन और मुसय्यब लफ्ज़ जो होता है वो
خود اپنی تاثیر ہوتا ہے. مسیب مصیبت سے ہے, مصائب سے ہے. اگر کسی کے دل میں کوئی مصائب مصیبت ہے تو وہ آج جناب بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کے بچوں کو روئے دل سے روئے گر گڑا کر روئے, کوئی شرم محسوس نہ کریں, کیونکہ سب سے پہلے یہ آواز لاہور میں مسلم مدفون ہے کوفے دا خدران دی جوئی مکھن لگئی. مدفون ہے کوفے دا خدران دی جوئی مکھن لگئی. قبران القبران علیاں ہر مومن دل رنجورے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ماتمیوں کو تھوڑی سی جگہ دے دیں تاکہ وہ فروز ماتم ہو سکے. ساری رات جاگ کے جو مجلس سننے کے لیے آتے ہیں اور صرف ماتم کے انتظار میں ہوتے ہیں, تو گزارش یہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ قدم با قدم پیچھے ہو جائیں تاکہ ماتمیوں کو اپنی جگہ مل سکے. جو ماتم کر نہیں سکتا وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے. میں قسم کھاتا ہوں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو مسلم کی جوڑی کا سب سے زیادہ ارمان ہے. لاہور مدینے تو
सानू 5 दिन बाद दा दर मिलिया रोजा तेरा पुरनूर जियो माता मौला का हाय बैर 18 बीना दी तेरी कब्र कितनी दूर इन दोनों ताबूत को देख के एक दफा दिल से हाय जरूर कहना। लाहौर वाले फैन मौजूद हैं यकीनन आज मेरी वसीयत समझे या नसीहत समझे, जो भी लाहौर गया है वो आज से अपने आप को, जो बीबी पाक का जाहिर है वो आज से अपने आप को ज़वार कह सकता है। लाहौर मदीने तो जियो